پی ٹی آئی احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد اور پنجاب سیل، حکومت نے کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دی، راستوں کی بندش سے لوگ پریشان، اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے، اسلام آباد سے فیض آباد پنڈی آنے والا راستہ بھی بند، فیض آباد آئی جے پی روڈ، رواد، کیریج فیکٹری، مندرہ اور ٹیکسلا روڈ کو بھی بند کر دیا گیا، موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے نو انٹری کے بورڈ لگا دیے گئے، جڑواں شہروں میں 33 مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، میٹرو بس سروس بھی معطل ہے، راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بھی سیل، جگہ جگہ کنٹینرز اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، راوی پل سے شہر میں ٹریفک کا داخلہ بند، موٹر وے پر بھی مختلف مقامات پر کنٹینر کی دیواریں لگا دی گئیں، گجرانوالہ میں بھی راستے بند، جی ٹی روڈ پر چناب اور دریائے جہلم پر پل بند کر دیا گیا، جہلم پل کے قریب مریض ایمبولنس میں دم توڑ گیا، مبینہ طور پر ایمبولنس کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لواحقین میت اٹھا کر پیدل ہی روانہ ہوئے، بس اڈوں کی بندش سے لوگ رل گئے، چیئرمین پاکستان بس اونرز ایسوسی ایشن نے کہا ہزاروں ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں، حکومت اڈے بند نہ کرے، وعدہ ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دھرنے میں سہولت کاری نہیں کرے گی۔ پنجاب کے بڑے شہروں اور اسلام آباد میں آج رات 12 بجے سے انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی، موبائل فون سگنلز بند نہیں ہوں گے، صرف انٹرنیٹ وائی فائی بند ہوگا، موبائل فون سگنل کی بندش کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 200 سے زائد پی ٹی آئی کارکن گرفتار، پولیس نے خواتین کارکنان کو بھی دھر لیا، ملزمان سے ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ۔ اس بار جو اسلام آباد آئے گا اس کو واپس جانے نہیں دینا، وزیر داخلہ کی پولیس کو واضح ہدایت، پولیس لائنز اسلام آباد میں خطاب کے دوران محسن نقوی نے کہا اسلام آباد شہر کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے، قانون ہاتھ میں لینے والا ہر شخص گرفتار ہوگا، اہلکار دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہنے، وزیر داخلہ کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ٹیلی فون احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا، محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا، کہا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلسے، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے، وزیر داخلہ نے صدر بیلاروس کی قیادت میں وفد کی مصروفیات سے آگاہ کیا، بتایا بیلاروس کا اعلیٰ سطح کا وفد کل اور پرسوں بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، غیر ملکی مہمان 27 نومبر تک اسلام آباد میں قیام کریں گے، بیرسٹر گوہر نے جواب دیا وہ پارٹی سے مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے۔ کل پورے ملک کے عوام کی منزل ڈی چوک ہوگی، فائرنگ سے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں حقیقی آزادی اور مطالبات کی منظوری تک ہر حد تک جائیں گے، تمام مطالبات پورے ہونے تک کارکن ڈی چوک پر رہیں گے، تحریک انصاف کا 24 نومبر کی احتجاج کی کال واپس نہ لینے کا فیصلہ، پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے رات گئے اجلاس کا اعلامیہ جاری، بے قصور قیادت، کارکنان اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کی تنسیخ، 8 فروری کا حقیقی مینڈیٹ بحال کیا جائے، کل ہر شہر سے قافلے صبح 10 بجے اسلام آباد کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے، اہداف کے حصول کے لیے تحریک جاری رہے گی، پارٹی ذرائع کا کہنا ہے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشینری کا بندوبست کر لیا ہے۔ جب بھی کوئی دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آتا ہے یہ لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے بات چیت کسی لیول پر نہیں ہو رہی، جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا، نند اور بھابھی کے درمیان ڈرامہ چل رہا ہے، جس ملک سے تحائف لاتے تھے آج انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتا ہے، نیکٹا نے فتنہ الخوارج کی ممکنہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا الرٹ جاری کر دیا، صوبائی حکومتوں کو سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کی ہدایت، نیکٹا کا کہنا ہے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بڑے شہروں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں،
दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इतलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खवारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुताल्लिका इदारे दहशत गर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। कुरम में हालात कशीदा। लोअर कुरम में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने कई देहात और बगन बाजार जला दिया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़ फोड़ की गई। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया बगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओं की गोद से छीन कर आग लगा दी। मुतासरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। बालिश खेल संगीना खारकिले में हालात कशीदा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम से ख़वातीन और बच्चों ने तहसील टल में नकल मकानी की। 1500 अफराद के लिए सरकारी इमारतों में रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया गया। दहशत गर्दी के वाक़े के खिलाफ ANP का सूबे भर में 25 नवंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। कुरम में अमन बहाली कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर वज़ीर कानून की सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ्द कुरम पहुंच गया। टूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की, अमन के लिए जरगा फ़ाल करने पर गुफ्तगू। वफ्द कल सद्दा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद कर दी। कहा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, मामलात खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की जा रही है। अव्वलीन तरजीह फरीक़ैन के दरमियान सीज़ फायर कराकर अमन कायम करना है। कुरम में अमन के लिए सीज़ फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने क़बाइली अमायदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के ज़रिए रिपोर्ट पेश की। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत इलाका अमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेगी। कुरम में अमन के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शन बुरुए कार लाए जाएंगे। कुरम और पाड़ा चनार में 4 रोज से आग लगी हुई है, लेकिन वजीर आला को फिक्र है कल विफाक में आग कैसे लगानी है। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI लाशें हासिल करने के लिए बेचैन है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जगह पारा चिनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुरम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है। कल मार्केटें जलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया। विफाक और KP हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जरगा पारा चिनार जाना चाहिए। PTI मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हो सकता है PTI कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। कहाँ हैं वो वज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। बानी PTI से जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीश। 28 सितंबर के मुकदमे में 1 घंटा पूछताछ। एहतजाज के लिए उकसाने और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात से मुतालिक सवालात किए गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। बुशरा बीबी की वीडियो बयान पर पंजाब में 5 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद सजा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के बयान पर PTI क़यादत में तशवीश। PTI के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इरसा एक्ट में तरमीम और 6 कैनाल्स की तामीर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कराची में JUI की APC का एलानिया जारी। नए कैनाल से लाखों एकड़ जमीन गैर आबाद 2 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाए ताकि सिंध को बंजर होने से बचाया जा सके। JUIF ने कालाबाग डैम से मुतालिक एक फतवा दिया था। दीगर मकातब फिक्र की राय शामिल करके दरियाए सिंध पर भी फतवा जारी किया जाएगा। 6 कैनाल का फैसला वापस ना लिया तो सिंध समेत मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 6 कैनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बंदे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया। सिंध हाई कोर्ट के सरकारी स्कूलों में कुतुब की अदम फराहमी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने पूछा, डेपुटेशन पर महकमा तालीम में तैनात अफसरान को वापस भेज दिया गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, डेपुटेशन पर तैनात 4 में से एक अफसर गुलजार अब्रोड चले गए। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बताया, सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में कुतुब मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली सहतू ने कहा, स्कूलों में मुफ्त कुतुब दस्तियाब हैं तो दुकानों पर रश क्यों है। सेशन जजेस पर अब हम एतबार नहीं करेंगे। अदालत ने कहा, बयान जमा करवा दें, मंसूबों की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, जावेद और गुलनिसा ने खुदकुश हमलावर को सहूलत फराहम की। मुल्जिमान का ताल्लुक कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। मुल्जिम जावेद को चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके अंचोली में 13 नवंबर को टारगेट किलिंग करने वाले ईरानी तंजीम के दहशतगर्द निकले। शहरी अबू हाशिम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि वो ईरानी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। 50,000 की सुपारी थी लेकिन पैसे नहीं मिले। ATC ने मुल्ज़िमान को 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार फ्लाईओवर पर डकैती मज़ाहमत पर सलमान नामी शहरी जाँ बहक। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी और 4 बच्चों का बाप था। मकतूल के दोस्त ने बताया, डाकू फरार होने लगे तो सलमान ने भी अपनी पिस्तौल निकाली, जिसे देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े को लेन देन का तनाज़ा करार दे दिया। मानसहरा में पसंद की शादी करने वाली लड़की को अदालत जाते हुए कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से मकतूला का ससुर शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का वाक़या। वज़ीर आला का एक्शन। MS मोहम्मद काज़म समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला मरियम नवाज की सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टरों को एड्स से मुतासर मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कहा, इलाज के लिए आने वाले अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। इस्तेमाल शुदा सिरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 38 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून में बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में 62 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में 6 तिब्बी वर्कर्स भी निशाना बने। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर 80 मिसाइल दागे गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इस्राइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इसराइली वज़ीर इंसाफ की वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी, जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे कल खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। मैच के लिए शाहीनों ने कमर कस ली, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग सेशन में हिस्सा लिया। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर अब्बास 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मारूफ शायर, कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की बरसी। उनके लिखे मकबूल मिली नगमे आज भी सबकी जुबान पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, अंजुमन, औलाद और दीगर कई कामयाब फिल्मों में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए।